Yes, sir. So like it is connected between the base and ground, right? Here this is positive. Positive goes to 47k, 470k. Then it is connected with a current meter of 50 microampere. 0 to 50 microampere. This is moving coil current meter. 0 to 50 microampere. It is connected in series with the power supply. Then this 470 kilo ohm resistance. Then the current meter. And the negative point of current meter connect to the base. Okay. This is your BJT. So this is connect with the base. Then collector. Collector is connect with the IC. Current meter of 0 to 10 milliampere. This collector goes to 0 to 10 milliampere current meter. And then this current meter connected with the one resistance 4.7 किलो ओम. आप देख रहे हैं ना अपने सर्किट में जो आपने बनाया है कॉपी में. गिव आंसर. मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ. Then this is connected with the 4.7k and 4.7k connected with the positive supply and the negative supply are both the same to the base to emitter and collector to emitter. And between collector to emitter there is a voltmeter 0 to 10 volt. This is here. This is 0 to 10 volt current meter, voltmeter, sorry. It is connected across collector and emitter. राइट जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने सर्किट के अंदर. ऐसा ही है ना सर्किट आपका देखा हो तो? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Now we will start. We are starting our experiment. This BJT characteristics of BJT, output characteristics of BJT. Right. Here we constant the current because it is constant current control device. BJT is. So we constant here base current in this meter. First slot is 5 milliampere. So I am wearing this potentiometer course and then here is 5 microampere. This is 5 microampere, right? Is it visible? Yes, So sir. it will be Yes, the sir. constant for first reading 0 to 10 volt tak. Now we will change this supply which is connected with across the collector and emitter. This voltmeter is here and this current meter is here. So this voltmeter is VCE. This is VCE. आपके फर्स्ट टेबल पे लिखा होगा सीरियल नंबर के बाद VCE 0 to 10 वोल्ट में. उसमें हम 0, 1, 2, 3, 4, 10 तक लिख लेंगे. And we will vary this voltmeter. This voltage we will vary. Correspondingly this current will change. Okay. Where IB is constant 5 milliampere. The first टेबल जो है आपकी उसमें देख लो आप. फर्स्ट टेबल है ना आपकी IC निकालना. IC अपना मेजर करना. Yes, sir. Then IB is 5 microampere. This is first table. So we are starting this table. You will write on 0 to 0 पे 0 लिखेंगे आप. Right. Then we will take reading 1 volt. So what is there? IC. We will find out. So this is 1 volt. 1 volt पे करंट मीटर यहाँ पे आया आपका करंट 2 मिली एम्पियर अप्रोक्स. जो भी आ रहा है इसको कोई बात नहीं काट दिया. 2 मिली एम्पियर लिखे हैं 1 वोल्ट पे. 1 वोल्ट पे आईसी कितना है 2 मिली एम्पियर. देन वी विल वेरी दिस ऑन 2 वोल्ट VC. On 2 volt this is 2.1 मिली एम्पियर. आप लिख रहे हैं ना? Yes, sir. Hello? Yes, sir. आप लिखते Yes, रहना sir. ऐसा नहीं कि हाँ स्किप हो जाए. ध्यान रखना. तो 2 वोल्ट पे आया 2.1 मिली एम्पियर. देन 3 वोल्ट. 3 वोल्ट पे 2.2 मिली एम्पियर. 4 वोल्ट. 4 वोल्ट पे 2.2 मिली 2 पॉइंट कितना था पहले कितना था 3 वोल्ट पे? Sir, 2.2 milliampere, sir. हाँ 2.3 कर दो आप 4 वोल्ट पे. 4 वोल्ट पे 2.3.
देन 5 वोल्ट पे 2.4, बहुत माइन्यूट वेरिएशन आ रहा है यहाँ, ठीक है ना। देन 6 वोल्ट, 6 वोल्ट पे 2.5 मिली एम्पियर आईसी। देन 7 वोल्ट, ये 7 वोल्ट पे आपका आ गया 2.6, 7 वोल्ट पे 2.6। देन 8 वोल्ट, 8 वोल्ट पे 2.8, 8 वोल्ट पे 2.8। देन 9 वोल्ट, 9 वोल्ट पे 2.9। देन 10 वोल्ट, 10 volt पे almost 3 milliampere. Okay, so this was our first block where the IB is 5 microampere, right? First table हो गई आपकी? Yes, Hello, sir. Yes. Yes, sir. Now we will change this voltmeter collector ammeter 0 on 0 first. Again it will come on 0, and the current of IB we will change on 10 milliampere. Microampere. 10 microampere, ठीक है ना, as you are looking in your second table. So here is 10 microampere. We vary 5 to from 5 to 10 microampere IB. Okay, then again we will change this VCE according IC. On 1 volt, 0 volt पे 0 लिख लिया आपने पहले। Yes, sir. हाँ, अब 1 वोल्ट पे ये आया आपका 3.4 मिली एम्पियर, 3.4 मिली एम्पियर 1 वोल्ट पे, ठीक है ना। ये 1 वोल्ट है, इस पे 3.4 मिली एम्पियर आईसी। देन 2 वोल्ट, 2 वोल्ट पे 3.6 मिली एम्पियर, ठीक है, 2 वोल्ट पे। देन 3 वोल्ट, 3 वोल्ट पे 3.8। देन 4 वोल्ट, 4 वोल्ट पे 3.9। देन 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे 4 मिली एम्पियर आईसी। 5 वोल्ट, that is in respect 4 milli ampere, right? Then 6 volt, on 6 volt there 4.1 milli ampere. Then 7 volt, that is 4.2 IC, 4.2 है 7 volt पे, ठीक है। Then 8 volt, 8 volt पे 4.4। Then 9 volt, 4.6, 9 volt पे 4.6 मिली एम्पियर। Then 10 volt, 10 volt पे 4.8। So this your second observation table is completed, where IB is 10 microampere. Okay, now again we will put in on 0 VCE. आप समझ तो रहे हैं ना? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ, नहीं समझ Yes, में sir, आए yes, तो, sir. हाँ, नहीं समझ में आए तो बता देना, ठीक है ना। Now we will change this IB at 15 microampere. Now I am changing with this voltmeter course potentiometer. This is potentiometer. What is it is called? It is called potentiometer to vary the potential difference. Okay. Now we are changing IB. It is on 15 microampere. Is it visible to you? Yes, sir. 15 microampere IB. Then we will change. IB will constant this for this table. We will change this voltage 1 volt. We are varying VCE 1 volt. 1 volt पे आपका करंट आ गया 5 मिली एम्पियर, राइट। दिस इज 5 मिली एम्पियर एट 1 volt VCE. IC is 5 मिली एम्पियर. देन 2 volt, 2 volt पे 5.2 मिली एम्पियर.
5.2 milliampere on 2 volt VCE. Then VCE is 3 volt. Current is 5.4. आप लिख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, then 4 volt. 4 volt पे 5.5. 4 volt पे 5.5 milliampere IC. Then 5 volt पे 5.7 milliampere 5 volt पे. Then 6 volt. 6 volt पे almost 6 milliampere. Then 7 volt. 7 volt पे भी 6 milliampere ही है. या उसको आप पहले वाले इसकी पहली रीडिंग जो है ना आईसी की वो 5.9 कर दो आप. इसको 6 कर दो ऑन 7 वोल्ट. 6 वोल्ट पे 5.9 और 7 वोल्ट पे 6 मिली एम्पियर. राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देन 8 वोल्ट. 8 वोल्ट पे 6.2 मिली एम्पियर. 8 volt VCE, then IC 6.2, then 9 volt VCE. So this is 6.4 milliampere IC. Then last reading is on 10 volt for 15 microampere IB. So this is 6.5 milliampere. On 10 volt, this is 6.5 milliampere. Like this is over your experiment number 6th. Characteristics of output characteristics of BJT. Have you any confusion about this experiment? So you may ask. सर ये कनेक्शन आप एक बार वापस बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता देंगे. ये हमारी पावर सप्लाई है. इस सर्किट में आप अपना सर्किट टैली कर रहे हैं अपनी कॉपी खोल के. तो ये आपका बेस टू एमीटर. ये सर्किट आपको टैली करना है. हाँ ये सर्किट टैली करना है आपको. आपकी कॉपी में बना लिया होगा आपने. पीडीएफ भेजा ना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी और आउटपुट. यस सर. इसमें आप टैली करें कि ये देखो आप, ये आपकी बेस टू एमीटर सप्लाई है. ये बेस टू एमीटर, ये एमीटर और एमीटर कॉमन है इधर. ये इधर एमीटर कॉमन है. ठीक है ना? सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल देखो आप अपने सर्किट में. देन दिस पॉजिटिव टर्मिनल गोज टू 470 किलो ओम रेजिस्टेंस. दिस 470 किलो ओम रेजिस्टेंस. 470 किलो ओम रेजिस्टेंस का कलर कोड क्या होगा? येलो, ऑरेंज, सॉरी येलो, ग्रे एंड क्या है? 470 येलो, ग्रे एंड येलो अगेन येलो. ठीक है ना? दिस इज 470 किलो ओम. देन दिस रेजिस्टेंस कनेक्ट विथ ए, किसके साथ कनेक्ट है ये? 50 माइक्रोएम्पियर कनेक्ट, 50 माइक्रोएम्पियर करंट मीटर के साथ. दिस वन हियर इज 50 माइक्रोएम्पियर करंट मीटर. ओके, यस सर. this is connect with the Yes, sir. base, and base connected, then collector is connect with the milliampere, 10 milliampere with this current meter 10 milliampere here to here, right? And this resistance 4.7 kilo ohm. This is connected with the positive terminal of battery or power supply. This is your second power supply, right? This one. Here is potentiometer coarse and fine. So we can change with the coarse potentiometer. This VCE. Here we change. But we will take reading from this meter, voltmeter. Don't take reading with this power supply, because this is the overall supply of this circuit. Collector to base. There in between there is a resistance 4.7 kilo ohm. So we take this reading, voltmeter reading. Okay? Don't take power supply reading. There are 3 meters. We will take the readings from the meters. It is very important to come for your experiment, right? यस सर. ये आपसे पूछ सकते हैं हम कि आप रीडिंग पावर सप्लाई से लेते हैं या मीटर से लेते हैं. ठीक है ना? अगर आपने पावर सप्लाई से रीडिंग बोल दी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर सप्लाई की टोटल वोल्टेज होती है जो उसके बीच रेजिस्टेंस भी आता है.
इसलिए हमें मीटर से रीडिंग लेनी होती है, करेक्ट, Okay, sir. which are connected across the circuit. Whatever it is base current, whatever it is current IC, collector current, or whatever it is VC, collector and ammeter voltage. Now, if you have any confusion, you may ask again. No confusion? Any student, if any confusion is there, you may ask. जिसको भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है सर से। ठीक है, फिर अगले एक्सपेरिमेंट बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट वाले पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफईटी, ये आपके समझ में आ गया ना, बीजेटी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वो इस तरह की आएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आएगी, देखो यहाँ से ये आपकी 15 माइक्रो एम्पियर ऊपर में है, फिर ये 10 माइक्रो एम्पियर है ये, फिर ये 5 माइक्रो एम्पियर सबसे नीचे, ठीक है ना। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। एक्स एक्सिस पे आप वोल्टेज लेंगे, वाई एक्सिस पे करंट लेंगे, ओके, एंड द ग्राफ विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करें फिर अपन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफईटी। This is your next experiment, FET, field effect transistor characteristic. Okay. This is your whole setup of characteristics of FET. अब अपना 7th एक्सपेरिमेंट खोलो आप, जो मैंने फाइल भेजी ना पीडीएफ फाइल, उसमें 7th एक्सपेरिमेंट नंबर 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफईटी, उसका एक बार सर्किट डायग्राम देखो और एक बार टेबल देखना। पहले आप सर्किट चेक करें, मैं आपको सर्किट टैली करवा रहा हूं, ठीक है ना, ऑन बोर्ड एंड विथ रेस्पेक्ट टू योर नोटबुक से आप अपना सर्किट टैली करें। This is your FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आप देख पा रहे हैं इसे? This one. Yes, sir. This is your Yes, sir. FET having 4 leads. Here FET has 4 leads. Do you know which are the 4 leads? Source, drain and gate. 3 terminals are connected here in circuit. Okay. This is drain connected with this current meter and then this power supply and resistance. Okay. This drain. Here is your source. Here is your source. This one. And next one is gate. And this one terminal is empty. No connection is there. That is shield. जब हम कोई सर्किट बनाते हैं पीसीबी पे तो इसको शील्ड कर दिया जाता है 4th टर्मिनल को, दैट इज कॉल्ड शील्ड। सो आप कॉपी में अगर देखेंगे तो आपको शील्ड भी दिखेगा कॉपी में, जो हमने कॉपी भेजी है ना उसके अंदर शील्ड भी है, 4 टर्मिनल है। तो जो यूज आते हैं वो बेसिकली सोर्स, ड्रेन, गेट आते हैं और शील्ड को ग्राउंड कर दिया जाता है पीसीबी पे जब ये कहीं इक्विपमेंट में लगता है तो। सो द एक्सटर्नल नॉइज कैन नॉट बी एंटर्ड। ओके, आप एफईटी पढ़ चुके होंगे अच्छी तरह, राइट? तो अब हम एफईटी का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफईटी। व्हाट इज एफईटी? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, Yes, sir. हाँ, दिस इज सर्किटरी। देयर इज voltmeter here, that is 0 to 3 volt, because it will vary 0 to 2 volt only. If you will see your
observation table. Number 1, VGS is 0, then ID find out. If VGS is minus 1 volt, then find out the ID correspondingly. If VGS is minus 2 volt, we will measure the ID correspondingly, right? Their VDS is vary 0, 1, 2, 3, 4 and up to 10 volt. Okay. Here is serial number. Here is VDS. We will change the VDS. When VGS is 0 volt, then find the or measure the reading of this one. Because this is FET, there is a pinch voltage 3 sets. Okay. So on pinch voltage, it is current is goes to same. Means FET goes to saturation. Okay. So again on x-axis we VDS and y-axis पे ID. Exactly. Then we will start our experiment. पहले हम देख लेते हैं कि ये ID ये जो VGS है ये 0 वोल्ट पे हमारा, ये पावर सप्लाई को हमने 0 वोल्ट पे रखा है अभी, ठीक है ना, जो VGS से कनेक्टेड है. आप यहाँ देख रहे हैं VGS से कनेक्टेड है एक सप्लाई 4.7 किलो ओम, देन कनेक्टेड दैट पावर सप्लाई नेगेटिव terminal goes to 4.7K and that 4.7K goes to gate, and there in between gate and source 0 to 3 volt VGS voltmeter. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं अभी, है ना, सर्किट समझ लें. Then drain connected to ID current meter, that is 0 to 25 milliampere. Okay, here is this one 0 to 25 milliampere, that is connected this gate, and gate is connected with here current meter between, right, and that is positive terminal. Here is positive terminal. Then this 1 kilo ohm resistance is in series. Then there is power supply. This is negative, this is positive. Positive goes to drain with series of one resistance of 1 kilo ohm. Okay. In between there is a current meter, this one. Am I right? Yes, sir. Then VDS, drain to source. There is a voltmeter. This one 0 to 10 volt. Okay. So so VGS first setup will take the VGS is 0. This one. This VGS is 0. So here VGS is 0. You can see here VGS is 0. This one VGS 0. Then we will vary this power supply according this voltmeter 0 to 10 voltmeter. Then ID, we will find out the ID. First reading is 0 VDS, then 0 ID, 0, next may be 0 or third may be 0. All three are 0 because there is 0 VDS, no potential difference. Okay. Then we will vary this ID by this power supply that is connected between the drain and source across the in series the 1 kilo ohm resistance. Now here you can see 10 volt. Okay. Then 2.5 volt having 10 divisions. So how many voltage will at 4 divisions? 1. Right, exactly. Very correct. Because 0.25 will 1 division, then 4 division will 1. Right. So we will vary here 4 division by this potentiometer course. मैं जोर से बोल रहा हूँ ना. Now I vary the 4 division means 1 volt. When I vary the 1 volt, then ID is 5.4 milliampere. 5.4 milliampere at 1 volt. Okay. At 1 volt 5.4 milliampere. लिख लिया आपने?
when VGS 0. लिख लिया भाई? Yes, sir. हाँ. Now I am wearing this 2 volt means 8 division. एट डिवीजन पे 10 मिली एम्पियर, मतलब कि 2 वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर, 2 वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर, राइट? देन 12 डिवीजन 3 वोल्ट, $10.6 मिली एम्पियर, 3 वोल्ट पे 10.6 मिली एम्पियर. Then 4 means 16 division. 16. This is 16 division. Then there is 10.6. 10.6, ठीक है? Then on 20. 20 division means 4 volt. No, 5 volt. Right? Yes. On 5 volt, Yes, sir. there is remains constant 10.4 whatever it is. What 10 क्या लिखाया था मैंने पहले? 10.6. Yes, sir. 10.6. Yes, sir. 10.6 अब ये milliampere. 10.6 पे ही कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सैचुरेशन पे पहुंच गई एफईटी आपका. आप समझा दो थोड़ा. ये वाला है. समझा दो. ये तो चार ही आए अपने रीडिंग्स इसके जैसे मैंने आपको एफईटी में बताया था कि अपन जब VDS बढ़ाएंगे तो मेरी जो आईडी करंट वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन पर्टिकुलर वोल्टेज तक इंक्रीज होगी. वो उसके बाद में क्या होगा कि आपकी जो आईडी है, ड्रेन करंट है, वो कांस्टेंट हो जाएगी, चाहे भले आप कितना भी VDS इंक्रीज करते जाए. मतलब इस वोल्टेज को आप कितना भी इंक्रीज करोगे, आपकी यहाँ पे जो आईडी है वो कांस्टेंट हो जाएगी. ओके, ठीक है. जब तक ये वेरी करेगा तब तक ये भी वेरी करेगा, लेकिन जिस वोल्टेज पे ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी वो कहलाएगा आपका पिंच ऑफ वोल्टेज. ओके, ठीक है. तो ये तो अपन ने पहली रीडिंग कब ली थी? जब अपन ने IG को 0 करते, मतलब अपन इस गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे थे, ठीक है. लेकिन आप क्या करेंगे? नेगेटिव वोल्टेज देंगे -1 पे. 10 वोल्ट तक जाते हैं. ठीक है, अभी हम 5 वोल्ट तक गए ना. अब आप यहाँ देखें तो वहाँ रीडिंग सेम ही रहेगी. IC सॉरी ID. या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस पे सेम रहेगा. देखना, ये देखो मैं ये 10 वोल्ट ले जा रहा हूँ यहाँ, ये 10 वोल्ट ले गया तो यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज हो गया, मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज आ गया वहाँ, तो करंट विल सेम. करंट भी सेम. देखो आईडी आपकी कांस्टेंट है, इवन ये वोल्टेज फुल बढ़ा दिया अपन ने फिर भी, अप टू 10 वोल्ट. यानी आईडी एंटर्स इनटू ड्रेन करंट एंटर्स इनटू सैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन आ गया. वही आपका जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये वही शो कर रहा है. ठीक है, ये वाला वेयर VGS 0, जहाँ पे आपका VGS 0 था. ओके, तो ये जो रीजन हो गया, ये वाला इस पॉइंट के इधर वाला, ये हो गया आपके सैचुरेशन रीजन. ये वाला रीजन हो गया आपके ओमिक रीजन. ये हो गया आपके ओमिक रीजन. ओमिक रीजन मतलब जहाँ पे V और VI को फॉलो करें. ठीक है. नाउ वी विल चेंज द VGS एट -1 वोल्ट. अब -1 वोल्ट कैसे लाएं? ये तो हमारा वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर तो है नहीं. इज इट राइट? सो हमने क्या किया कि इस वोल्ट मीटर को उल्टा लगा दिया. जहाँ पॉजिटिव दिया, नेगेटिव जहाँ है वहाँ नेगेटिव दे दिया ऊपर. मतलब गेट पे पॉजिटिव देना था और नीचे गेट पे नेगेटिव देना था और नीचे पॉजिटिव. तो इस उसको अकॉर्डिंगली लगाया तो ये पॉजिटिव रीडिंग में चलेगा VGS, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नहीं है, अदरवाइज नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड मूव करता. राइट? सो वी विल चेंज दिस ऑन 1 वोल्ट, दिस VGS. So this is 1 volt VGS, right? When VGS is 1 volt, then write down the reading at 0 volt 0. Then we will again change this VDS, right? On 1 volt, 4 division means 4 division. On 1 volt there is 4.4 milliampere. 4.4 है? ओके, ये 4.4 ही दिख रहा है. हाँ 4.4.
मतलब आपको इसको इंक्रीज वेरी करते जाना है, यानी इंक्रीज करते जाना है, और हर एक वोल्टेज पे आपको यहाँ पे रीडिंग लेनी है। आईडी आईडी पे मतलब डेंट रंग की आपको रीडिंग लेनी है। लेकिन क्या होगा, कुछ वोल्टेज पे यहाँ पे फिर एक कांस्टेंट आने लग जाएगा। ये बढ़ा देंगे, लेकिन आपके पास में ये नहीं बढ़ेगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह की आपको वापस रीडिंग लेना है। ठीक है, वही आपको इसमें करना है। Now we will change on 2 volt. टू वोल्ट पे हो गया आपकी 5.2 मिली एम्पियर, अप्रॉक्स 5.2 मिली एम्पियर 2 वोल्ट पे। ठीक है, अब हो सकता है ये नहीं बढ़े। 2 वोल्ट एंड देन 12 डिवीजन 3 वोल्ट। 3 वोल्ट पे भी वही है, देखो आप उतना ही है ना 5.4, then 4 volt and then we will put it on 10 volt. Up to 10 volt the reading is same. बढ़ी रीडिंग थोड़ी बढ़ेगी वो पिंच ऑफ लेट थोड़ा सा बढ़ेगा, तो स्लाइटली वेरिएशन इज देयर, इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आप इंक्रीज कर भी रहे हो, लेकिन देखो यहाँ पे आपका लगभग जो करंट है वो आपके 5.4 के नियर अबाउट कांस्टेंट है, 5.4 के कांस्टेंट है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे करंट कांस्टेंट जाती है, जिस वोल्टेज पे करंट कांस्टेंट जाता है, वो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। सो देयर इज on after 2 readings that is same as the VGS is -1 volt. Then रीडिंग में आपको दिख भी रहा होगा कि पहले जब आपका VGS 0 था तो आपके करंट सैचुरेशन कब आई थी, 12 पे आ गई थी। ठीक है, देखो 12 यानी अब इसको अपन मोर नेगेटिव कर देंगे, तो जो पहले आया था उससे अब जो VP है पिंच ऑफ वोल्टेज उससे और पहले आएगा। तो अगर पहले 12 पे आया था तो अब किस पे आएगा, 7 पे आएगा। ठीक है, अब इसको अपन अगर और नेगेटिव करेंगे, व्हेन VGS इज मोर नेगेटिव, तो आपके सैचुरेशन और जल्दी आ जाएगा। देखो अब 2 पे आ गया। तो इस तरह से आपको ये रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, हालांकि ग्राफ थोड़ा गड़बड़ है। जो ये पिंच ऑफ वोल्टेज 0 पे था, अगर 12 वोल्ट इस रीडिंग के हिसाब से, तो 12 तो पहले इससे पहले आएगा, यहाँ का रीड आएगी 7, और जो और नेगेटिव करेंगे तो कहीं वो और यहाँ पे आएगा। ये कभी एक लाइन में नहीं आते। ठीक है, थोड़ा तिरछा आ जाएंगे ये पॉइंट, है ना, ये इस तरह से आएंगे। पॉइंट लास्ट जो है वो थोड़े से तिरछे आएंगे, ये थोड़ा सा गलत है, ये सीधे कभी स्टेटमेंट नहीं आते। ओके, तो ये था आपका FE के बारे में। Have you any confusion or doubt? You may ask. Any type of doubts you may ask. सर वो उसको उल्टा किया था, माइनस में कैसे लाए थे सर वो वापस? हाँ भाई, अपन गेट के ऊपर पॉजिटिव अगर लगाते, एक मिनट, इसमें क्या है कि जो आप VGS दे रहे हो ना, वो आप दे रहे हो नेगेटिव दे रहे हो। देखो VGS जो है ना, वो नेगेटिव, जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, वो सर्किट देखो आप, सर्किट देखो, ये गेट से जो है ना वो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, 4.7 के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। ठीक है, तो अब ये जो वोल्ट मीटर है, इसको क्या करा अपन ने, उल्टा कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पे नेगेटिव किया है, तो नेगेटिव ही आएगा वो। अगर हम उसको अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते तो पॉजिटिव को यहाँ लगाते तो वो लेफ्ट साइड मूव होता, बट इट इज नॉट गैल्वेनोमीटर, इट इज ए वोल्ट मीटर, सिंपली वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर, अब डीसी -1 तो होगी नहीं, स्केल हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें देखो हमेशा स्केल पॉजिटिव में है। So we connect accordingly this power supply. If power supply is either negative, then negative will connect here. Don't connect this positive. Okay? Otherwise, Okay, for sir. measuring, we connect positive here. So like this, we find this negative voltage. But the voltmeter shows the positive voltage. देखो जैसे ये वाला वोल्ट मीटर है ना, जो VDS वाला, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ देखो हमने इसको नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट, ये इसका नेगेटिव वोल्ट मीटर का, ये अपने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। यस Will go to positive. तो Okay? तो वो पॉजिटिव दिखाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर में अपन नेगेटिव दिखा नहीं सकते ना, इसके लिए हमने पॉजिटिव ही होता है। गॉट इट? But actually that is negative voltage. Okay? लेकिन ये ध्यान रखना है कि भले इसमें आपको पॉजिटिव शो हो रहा हो, लेकिन वो है नेगेटिव वोल्टेज। क्योंकि we connect this voltmeter opposite side, opposite direction, negative to negative. हाँ, so is it clear or any questions if you have doubt? ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. No confusion? नो सर।
एक दो से नाम से No, पूछ sir. लो भाई, नेम नाम दिख रहा ना, पूछ लो बीच में। हाँ, युवराज, तनु, योगेश, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes. यस सर। तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चले। ओके सर। दो हो गए आज आपके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी एंड स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखो दोनों के आपको जो कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ना, वो आपको ध्यान रखने किस तरह आए हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि रीडिंग अपन ने कैसे ली है। गॉट इट? Yes, sir. जैसे एफईटी का कर्व ये है, तो इस तरह का ये है। बीजेटी का कर्व कुछ इस तरह से आएगा। तो ये कर्व अगर आपको ध्यान देंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमको वी और आई की रीडिंग कैसे लेनी है और किस तरह का ग्राफ आएगा। ओके, आपको तो सब रेडीमेड दिया हुआ है सारा, ये आपको पीडीएफ। सब करना है, पीडीएफ दे रखी है सब, आपको सिर्फ यही करंट की रीडिंग लेनी है, बस करंट की रीडिंग लेनी है, और कुछ नहीं करना। बाकी आपको पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, हाउ इट इज वर्क, राइट। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट अपन कर लेते हैं आज जीनर। जीनर करें, ये एलईडी कर लेते हैं। एलईडी सिंपल है, एलईडी वाला समझ में आ जाएगा इनको। फिर ये जरूरत नहीं है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब एलईडी निकालना है। अब आपने उसमें से फाइल में से निकालो एलईडी, जो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। सबने ओपन किया एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एलईडी? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो वो जो मैंने कल पीडीएफ भेजी थी उसमें देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 ओपन करो, एलईडी वाला एक्सपेरिमेंट नंबर 4, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। कैरेक्टरिस्टिक एलईडी। ओपन किया सबने? यस सर, कर लिया। यस सर। देखो तो एलईडी का सबसे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें ज्यादा कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको बताते हैं, देखो एलईडी क्या है। यहाँ देखो आप, एलईडी लग रही है ये एलईडी, दिस इज एलईडी। एलईडी कैन बी डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट साइजेस, राइट। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm in size. And color, there are so many colors for LED: red, green, blue, magenta, and many more. And transparent LED is also there in remote controls of TV, right? So this is your circuit of LED. Again, we are using here power supply, DC regulated power supply 0 to 30 volt, right? This is your power supply. Here again, voltmeter, that's volts, potentiometer. Here is coarse and here is fine. Because in LED, their voltage difference is very low, 0.2, 0.4, 0.6. So we will use this fine potentiometer, this fine one. Because fine will vary the very minute variation in voltage. Coarse will vary the more voltage. Okay? So आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश में? तो हिंदी में बता दूं मैं। Yes, sir. In the ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियोमीटर है आपका, अब कुछ वर्ड तो इंग्लिश में ही बोले जाएंगे जो होते हैं, ठीक है ना। विभावांतर वगैरह बोलना बड़ा अजीब लगेगा। तो ये वोल्ट्स का जो आपका कोर्स का पोटेंशियोमीटर है, इसको वेरी करने से ज्यादा वोल्टेज वेरी होती है और फाइन से कम वोल्टेज वेरी होती है, राइट। देन वी विल स्विच ऑन दिस supply on. Here is writing on, here written is on, so this supply is on upward direction. Now we will vary this voltage. Here is voltmeter 0 to 3 volt. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने सर्किट में, देख रहे हैं ना, 0 to 3 volt लग रहा है across the LED, और करंट मीटर लग रहा है 0 to 5 milliampere. This one, this is 0 to 5 milliampere. Okay. Now we will vary this voltage.
with this fine potentiometer. If -2, if we take on -2 reading, sorry, 0.2, 0.2, sorry. First reading is your 0 पे तो 0 ही लिखेंगे आप. I. If voltage is 0, then I will 0. And then Yes, sir. second reading, serial number second, 0.2 volt. Then what will be the current? We will measure here. So here is 0.1 milliampere. Here 0.1 milliampere. Then we will vary the 4 division. If 0.4 volt, then current is 1.5, 0.15. Current is 0.15 milliampere. Okay? बहुत ही माइन्यूट सा आपको उसमें वेरिएशन दिखेगा. Yes, sir. देखो मतलब इस पावर सप्लाई से हमको वेरी करना है Voltage. ये वोल्टेज, और इस वेरी वोल्टेज की पर्टिकुलर रीडिंग पे हमको पर्टिकुलर करंट देखनी होगी. ठीक है. वोल्टमीटर बेसिकली एलईडी के अपन ने पैरेलल में लगाया है, और जो ये अमीटर है जो करंट रीडिंग करता है वो अपने सीरीज में लगाया है. ओके. तो मतलब इस पर्टिकुलर वी पे पर्टिकुलर अपन को आई देखते चलना है और रीडिंग नोट करते चलनी है. एंड वी विल मेजर ऑन, हम केवल इस वोल्ट मीटर और करंट मीटर को मेजर करेंगे, ना कि इस पावर सप्लाई से वोल्टेज. हाँ, इसको कभी भी आपको देखना नहीं है, इसको सिर्फ वेरी करना है, इसको आपको देखना नहीं है. इसके वोल्टेज नहीं देखना. देखिए सिर्फ आपको ये वोल्टेज और ये करंट देखना है सारे एक्सपेरिमेंट में. ठीक है. हाँ, तो आपने कितने 0.4 पे लिख लिया ना, 0.15, 0.4 वोल्ट पे 0.15. 0.4 वोल्ट पे 0.15 रीडिंग आएगी इसके ऊपर. फिर अपन ने और चेंज किया, यहाँ पे 0.6 किया, यहाँ पे 0.6 किया, देन हियर 0.2, यहाँ पे 0.2 आ गई मिली एम्पियर. ठीक है. देखो एलईडी को आपको हमेशा पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करना है. मतलब एलईडी को आपको फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करना है. ये जो एलईडी है ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तभी आपकी एलईडी ग्लो करेगी, वरना एलईडी ग्लो नहीं करेगी. ठीक है. एनोड विल कनेक्ट टू द पॉजिटिव. ओके. तो अब जो एलईडी है, हम इसका एक्चुअली बेसिकली ग्लो पॉइंट देखेंगे, ग्लो किस वोल्टेज पे और किस करंट पे होती है. ठीक है. जैसे अभी देखो अपन इंक्रीज करें दोनों चीजों को, तो हमारे पास में ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है. ठीक है. नाउ वी विल वेरी द 0.8. 0.8 वोल्टमीटर रीडिंग है 0.8 और यहाँ रीडिंग है 0.3 या 4 कह लो, 0. जो भी दिख रही है. हाँ, जो भी दिख रही है 0.3 पॉइंट समथिंग है. ठीक है. 5. ओके. 0.8 पे है ना? नहीं, हाँ 0.8 अब पे इसको 0.8 पे लेके आना ले है. ली. 0.8 0.8 पे ले लिया. अब 1 वोल्ट पे ले. हाँ, यहाँ पे देखो 0.8 पे कितना है? 0.8 पे 0, इसमें है 1 2 3 पॉइंट समथिंग है. 3.5 कर दो. 0.35. 0.5 मिले ना. 0.35 मिली एम्पियर, राइट? ठीक है भाई. Yes, sir. हाँ, देन अब हम इसको 1 वोल्ट पे करते हैं. वोल्ट मीटर को 1 वोल्ट 1 वोल्ट पे हमने इसको 1 वोल्ट पे कर लिया, तो करंट बढ़ गया. पॉइंट तो यहाँ आप क्या देखो करंट बढ़ गई. क्या हो गया? ठीक है. मेरे ख्याल में हो गए है 1 2 3 4 कर दो. 4 0.4 कर सकते हो. तो 0.4 आपके यहाँ पे आ गया. देखो अभी भी एलईडी आपकी ग्लो नहीं करी है. ठीक है. ग्लो करी, एलईडी नहीं करी ना, आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी. ठीक है. हम इसको और इंक्रीज करते हैं. 1.2 किया 1.2 किया या 1.5 है, कोई बात नहीं. 1.5 कर देते. चलो 1.5 कर देते हैं. 1.2 रहने दो आप. ये देखो 1.5 पे ये ग्लो कर गई है एलईडी. देखो अब आप स्लाइटली ग्रो की है. दिख रही है. हल्की सी ग्लो हुई है ना? यस सर. Yes. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. That 1.4 we can say it 1.4 not 1.5. देखो ये आप अब ग्लो दिख रही है आपको. Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब क्या हुआ कि जब आपके प्रॉपर एलईडी को प्रॉपर वोल्टेज मिला तभी ये ग्लो करी, और वही जो आपका वोल्टेज जो होगा वो कहलाएगा आपका ग्लो वोल्टेज या ग्लो पॉइंट कहलाएगा. ओके. ग्लो पॉइंट वो पॉइंट है that is minimum voltage where the LED glows at minimum voltage and minimum current.
ठीक है ना, कम से कम वोल्टेज और कम से कम करंट पे जहां एलईडी आपको हल्की सी ग्लो करती हुई दिख रही है, दैट इज ग्लो पॉइंट। इसके बाद तो ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इल्यूमिनेशन बढ़ेगा एलईडी का, राइट। ठीक है, अब ये आपकी जैसे ग्लो हो गई ना, अभी आपको कम कम दिख रही होगी, तो जैसे हम वी को चेंज करेंगे, वोल्ट को चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी, जो चमक है, वो आपको बढ़ती नजर आएगी। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं। अब मैं इसको 1.6 करता हूँ, ये देखो, ये 1.6 किया तो देखो एकदम एलिमिनेशन बढ़ गया इसका। बढ़ गई इंटेंसिटी। Yes, sir. करंट विल गोज ऑन 4 मिली एम्पियर, देखो, करंट भी एकदम से बढ़ गई, 4 मिली एम्पियर, क्योंकि अब जो एलईडी है वो प्रॉपर फॉरवर्ड बायस में आ रही है। ओके, क्या है वोल्टेज, क्या है इस पे, क्या लिखी है आपने वोल्टेज 4 मिली एम्पियर पे? 1.6 हाँ ठीक है, राइट। नाउ अपना जो ये करंट मीटर है तो 5 मिली एम्पियर का ही है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको सीधा 5 मिली एम्पियर पे कर देते हैं और जो करंट वोल्ट मीटर आता है, वोल्टेज आती है, वो लिख लेंगे हम, राइट। Yes. तो मैंने इसको 5 मिली एम्पियर किया, क्योंकि 5 मिली एम्पियर से एक्सीड करेंगे तो मीटर जल जाएगा हमारा, तो वोल्टेज हमारी आ गई 1.65। 1.65, वोल्टेज लिखेंगे 1.65 एंड करंट इज 5 मिली एम्पियर। ओके, दिस वाज योर लास्ट रीडिंग। ये आपकी आखिरी रीडिंग थी, क्यों की, ऐसा क्यों हुआ, हम आगे क्यों नहीं गए 1.65 से? अगर 1.65 से हम आगे जाएंगे तो ये करंट मीटर हमारा जल सकता है, बर्न हो सकता है, राइट। Yes. सर तो हमने yes, sir. लिमिट के अंदर इस वोल्टेज को रखा है एलईडी के, ना तो एलईडी खराब हो ना हमारा ये करंट मीटर खराब हो, एक रेस्पेक्टिव कर्व हमारे ड्रॉ हो जाए, ठीक है ना, जो उचित कर्व है वो हम बना सकें। तो ये हमारा कर्व है, आप ये देखें, वोल्ट मीटर एक्स एक्सिस, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे करंट है। यहाँ पे इसका ग्लो पॉइंट आया है 1.5, ये देखो, ठीक है ना, ये जी ग्लो पॉइंट लिखा है ये, और इसको डॉटेड से शो करते हैं यूं। फिर इसके बाद ये वोल्टेज बढ़ती रहती है, इस तरह से कर्व आ जाता है, राइट। Yes, sir. हाँ, तो ये एलईडी का एक्सपेरिमेंट आपका पूरा हुआ। अगर कोई डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हैं हमसे। 1.4 वोल्ट पे एम करंट कितनी थी ये बताना है अब? क्यों भाई 1.4 वोल्ट पे कितनी करंट थी, कोई बताएगा? ये 1.4 पे देखो, कितनी थी आपको पे लिखाई है ना भाई, कोई बोलो पहले। 0.4. हाँ 0.4, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलईडी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखें कि ये एलईडी को अगर ज्यादा वोल्टेज दे दिए गए, क्या मान लो इसको एलईडी को हमने 3 वोल्ट दे दिए, इसका जंक्शन जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके बाद ये एलईडी ज्यादा वोल्ट पे ही ग्लो करती है। तो इसमें ऐसा हुआ है, लगता है मुझे कि किसी ने ज्यादा वोल्ट दे दिया है, तो हमारा 1.5 ग्लो पॉइंट आ रहा है ना। Yes, sir. वैसे ये ग्लो पॉइंट हमारा 0.5 वोल्ट पे आ जाता है लगभग। तो ये अगर ये जो अपने साथ जो प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, आप तो समझ गए कि 1.5 वोल्ट पे ग्लो पॉइंट हुआ। अगर हम नई एलईडी यहाँ लगा दें तो वो हो सकता है कम वोल्टेज पे ग्लो हो जाए, एट ग्लो पॉइंट लो आ जाए हमारा। इज इट राइट? तो एलईडी के साथ क्या क्या हो सकता है, ज्यादा वोल्ट देने पर उसके एनोड कैथोड जो जंक्शन है वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ज्यादा वोल्ट पे वो ग्लो होने लगती है। इसलिए हम कई बार देखते हैं इक्विपमेंट में कुछ एलईडी जल रही है, कुछ नहीं जल रही है, या बहुत कम जल रही है। दैट इज ड्यू टू दिस इफेक्ट, टू गिव द मोर वोल्टेज, उसको ज्यादा वोल्टेज देने से। सो अब आपको कोई किसी तरह का डाउट है तो पूछ ले, नहीं है तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में चलें। सर इसमें टेबल में फिर ये ग्लो पॉइंट 0.5 पे लिखना है या 1.5 पे रखे सर? 1.5 पे नहीं, जो रखे। आया है जहाँ पे आया है, ये तो मैंने आपको समझाया है। मान लो हम कोई दूसरा बोर्ड लगाएं या एलईडी चेंज करें तो उसका ग्लो पॉइंट कम भी हो सकता है, नई एलईडी लगा दें तो, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल आपको सिखाया है, मैंने बताया है, राइट।
ओके यहाँ पे सर, तो आप वही लिखें जो आपने हमने लिखा है, वही लिखें, ठीक है। ठीक है सर। मगर वाइवा में पूछ सकते हैं कि अगर इसका ग्लो पॉइंट 0.5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एलईडी चेंज हो गई है, वो उसको ज्यादा वोल्टेज नहीं दिए गए हैं, नई एलईडी हमने लगा दी है। वो जो पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो एलईडी का जंक्शन खराब हो चुका था थोड़ा, राइट। Yes, sir. यस सर। तो पॉइंट Yes, sir. 0.4 वोल्ट या 0.5 वोल्ट पे ग्लो पॉइंट नई एलईडी का आ जाता है जनरली, ठीक है। Yes, sir. ठीक मैं है सर। समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा एलईडी का एक्सपेरिमेंट। अगर नहीं आया है फिर भी तो आप अभी पूछ लें, मैं और सर दोनों बैठे हैं। कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके तो चलें फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मजा आ रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगला एक्सपेरिमेंट कौन सा है सर? अगला जीनर कर, जिनर कर लेते हैं। आप जीनर निकाल लो। जिनर डायोड निकालो आप। ये बताओ। तो ये आपके जिनर डायोड, दिस इज योर जिनर डायोड। इट इज वेरी, बहुत छोटा इसमें साइज में होता है ये जीनर डायोड, बहुत ही छोटा साइज में होता है। देखो आप देख जिनर एक्सपेरिमेंट खोलो। जिनर एक्सपेरिमेंट कौन सा है? एक्सपेरिमेंट नंबर 5। करेक्ट, Yes. यही करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, राइट। Yes, sir. आपको मैंने जिनर डायोड पढ़ा था, को याद है ना कि जिनर डायोड को अपन वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइस कहते हैं। ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, इसमें जिनर ब्रेकडाउन होता है रिवर्स वोल्टेज पे, याद है ना सबको? Yes. सर। Yes, sir. यस यस तो इसको अपन किसमें कनेक्ट करेंगे? रिवर्स बायस में करेंगे, यानी पी पार्ट नेगेटिव से और एन पार्ट पॉजिटिव से, उल्टा उसको कनेक्ट Positive करेंगे, से, रिवर्स sir. बायसिंग करेंगे, ठीक है। आप सर्किट में देख रहे होंगे एनोड जो है नेगेटिव पे कनेक्ट है। आप देखना कि जो उसका एनोड है वो नेगेटिव पे कनेक्ट है, सर्किट में देखो आप पहले। ठीक है। ये तो सर्किट है, सप्लाई उल्टी है, ठीक है। ये एनोड है ना, यहाँ देखो जीनर का, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी नेगेटिव कनेक्ट है। देन ये इसका बैटरी का या सप्लाई का भी नेगेटिव कनेक्ट है, और कैथोड से नेगेटिव दिस करंट मीटर कनेक्ट है। देन पॉजिटिव रेजिस्टेंस पे गया है और रेजिस्टेंस वापस पॉजिटिव पे आया हुआ है। तो कैथोड पे पॉजिटिव मींस रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में आपको ध्यान रखना कि रिवर्स बायस में कनेक्ट तो करना है। यहाँ पे इसका वोल्ट मीटर है 0 से 10 वोल्ट, और 0 से 10 मिली एम्पीयर करंट मीटर लग रहा है सीरीज में। जिनर डायोड को पैरेलल में अपने वोल्ट मीटर लगाया है और जिनर डायोड को सीरीज में अपन ने अमीटर लगाया है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर आपके डिवाइस के पैरेलल में लगता है और जो आपका अमीटर है, करंट मेजरिंग डिवाइस है, वो उसके सीरीज में लगता है। गॉट इट? अब हम यहाँ यस सर। ये देखो, ये देखो आप जीनर देख पा रहे जीनर हैं, देखो, बहुत छोटा सा है। जिनर डायोड के देखो हमने पहले में वोल्ट मीटर लगा रखा है, ओके। अब हम यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट करते हैं। ये पावर सप्लाई देखो, ये डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाई है। ये अपन ने दूसरी पावर सप्लाई देखी थी ना, ये डिफरेंट टाइप की है। इसमें पावर यहाँ लिखा हुआ है पावर ऑन, एंड एक आउटपुट स्विच है इसके अंदर। ये अगर ये इसको दबा देंगे हम तो बंद हो जाएगी, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो इस स्विच को यूज लेना पड़ता है दबाने से। तो दिस इज फॉल्कन मेक पावर सप्लाई, दिस इज फॉल्कन मेक सिंगल चैनल sir. डीसी पावर सप्लाई PS303S। ये पावर सप्लाई देख लें आप, ये डिजिटल इस पे डिस्प्ले है। ये पावर स्विच है, ये इसके कनेक्शन है। रेड पे रेड पॉजिटिव एंड ब्लैक नेगेटिव दिया हुआ हमने। ग्राउंड ये ग्रीन ग्राउंड होता है, इसको नहीं यूज लेते हैं अभी, ठीक है ना। एंड दिस इज अगेन ओनली वन पोटेंशियोमीटर इज देयर टू, केवल एक ही पोटेंशियोमीटर चेंज करने के लिए विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए एक ही पोटेंशियोमीटर है। पहले आपने दो देखे ना अभी फाइन एंड कोर्स, इसमें एक ही है।
हाँ, तो अब हम इससे चेंज करते हैं, यहाँ वोल्टेज 1 वोल्ट लाते हैं। ये 1 वोल्ट किया हमने, तो करंट 0.1 से भी कम आया है। क्या है इसमें देखिए, आइंदा 0.1 तो आगे एक्चुअली थोड़ी सी एरर रहती है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। 1 वोल्ट पे 0.1 लिख लें। 1 वोल्ट पे 0.1 वोल्ट करंट मीटर मिली एम्पियर। जीरो पे तो जीरो लिख लिया आपने। यस सर। Yes, sir. सेकंड सीरियल नंबर सेकंड मतलब 1 वोल्ट पे 0.1 वोल्ट 0.1 मिली एम्पियर लिखे। 1 वोल्ट पे 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, देन 2 वोल्ट, अब इसको 2 वोल्ट पे करेंगे। 2 वोल्ट पे कर दिया तो 0.2 आ गया। देखो 0.2 और बिल्कुल हल्का सा माइन्यूट सा डिफ्लेक्शन आया होगा। 0.2 हो गया, ठीक है ना, राइट। देन Yes. 3 वोल्ट, 3 वोल्ट पे 0.3 आ गया, ये थोड़ा बढ़ गया, हाँ 0.3 हो गया, ठीक है। देन 4 वोल्ट, बहुत कम ही वेरिएशन होगा अभी, 4.4 वोल्ट 0.5 वोल्ट तक। 4 वोल्ट पे 0.4 हो गया करीबन, ठीक है। 4 वोल्ट Yes. पे 0.4। देन 4, अब हम क्या करेंगे, 4.2 लेंगे। 4 के बाद ये अगर इसमें 5 लिखा हुआ है ना तो वो गलत है। आपके क्या लिखा हुआ है रीडिंग में? 4 के बाद 5 है सर। हाँ, उसको अब जो रीडिंग लेंगे हम 4.2, मतलब 0.2 के डिफरेंस में रीडिंग लेंगे अब हम, ठीक है। 5 नहीं लेंगे पहले, 0.2 के डिफरेंस में पूरी रीडिंग लेंगे एंड तक, राइट। ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां रुक जाएंगे। हाँ, तो अब 4 वोल्ट की ले लिया, 4.2 की लेते हैं हम, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस होगा। तो कितना आया ये? इसमें तो होगा ही नहीं, देखना पड़ेगा वो। तो ये आ गया 0.5। 0.4 आया था ना 4 वोल्ट पे। यस सर। तो 4.2 पे ले लिया था अपन ने। पॉइंट नहीं सर, 4.2 का ले। 4.2 का ले रहे थे सर अभी। कितना लिया था नहीं, 4.2 पे? नहीं लिया। 4.2 पे आप ले ले 0.5। 4.2 वोल्ट पे 0.5। Yes. Yes, sir. अब 4.4, 4.4 वोल्ट पे 0.6 कर ले अगली। 0.6, 4.6 पे 0.7, 4.8 पे 0.8, देन 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे 1 मिली एम्पियर, 5 वोल्ट पे 1 मिली एम्पियर, राइट। देन 5.2, 5.2 पे 2 मिली एम्पियर, ठीक है। देन 5.4, अब 5.4 पे आया 4.5 क्या 4.4, 4.4 या 5 जो भी 4.4 लिख लो आप, ठीक है। देन 5.2 के आगे ये, हाँ ये 5.2 ही रह गया, देखो आप। तो अभी कितना था अपना 5.4 पे कितना था? 4.4 मिली एम्पियर सर। हाँ, उसके बाद देखो हम ये वोल्ट मीटर में बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया 5.4, मगर करंट मीटर आगे बढ़ता रहेगा। दिख रहा है आपको? ये देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर इतना ही है, उसको दिखाऊं। करंट मीटर देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये 10 कर दिया हमने, 10 मिली एम्पियर, बट वोल्टेज इज स्टिल 5.4। देखो इस पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, वहां 10 मिली एम्पियर पहुंच गया है, ठीक है ना। सो इट गोल, ये अपना कट ऑफ रीजन में चला गया, ब्रेक डाउन रीजन, सॉरी जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन में चला गया ना, जीनर, क्योंकि वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट रह रही है और करंट बढ़ रहा है।
तो अगर आप ग्राफ देखें तो इसी तरह का आ रहा है 5.4 पे, यहाँ 5.2 हो सकता है आपका, आप 5.4 कर लें जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 5.2 एंड 5.4, 5.4 पे ये ऐसा आ जाएगा स्ट्रेट नीचे लगभग इस तरह का, और ये करंट बढ़ती रहेगी। करंट इज ऑन, करंट जो है वो आपकी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। और ये जो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये ग्राफ। देखा है आपने? थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहा है ना आपको कॉपी में? आपने खोली भी होगी कॉपी, उसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस तरह का ग्राफ है ये, देखो यहाँ से यहाँ आया और फिर ये ब्रेक डाउन हो गया, जीनर ब्रेक डाउन। मतलब करंट आपकी सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो गई, लेकिन जो वोल्टेज है वो आपका कांस्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सर ये तो फिर कैसा नेगेटिव में बनेगा सर ग्राफ तो? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो अपना नेगेटिव हो गया ना। ये जो आपका एक्सिस है ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस वी है और आपका ये माइनस आई है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस ही होते हैं ना। यस सर। हाँ, और कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई ऐसे टफ नहीं है। आपको कोई डाउट है तो पूछ लो हमसे अभी आप, क्योंकि अभी अपन टेबल पे बैठे हुए हैं। सर वो जिनर ब्रेक वाला सर वापस बता दो। हाँ, जिनर ब्रेकडाउन 5.4 पे हुआ है। देखो हम वापस इस दोनों को दिखा दो एक साथ। अब आप दोनों मीटर एक साथ देखें, थोड़ा सा पास ये दिखता है बस। अब आप देखें, मैं वापस इसको 0 पे कर रहा हूँ, ये 0 पे किया, फिर ये मैंने वोल्टेज बढ़ाई 1 2 3 4 4.2, देन आगे चलते रहे ये 5 पे कांस्टेंट हो गया। मीटर दिख रहा है यहाँ, ये 5.4 पे कांस्टेंट हो गया, वो 4 मिली एम्पीयर से भी आगे जा रहा है, ये बढ़ रहा है, देखो दिख रहा है, ये ब्रेक डाउन हो गया देखो 5.4। और देखा, जो वी आपका कांस्टेंट है, लेकिन अपना जो करंट वाला है ये देखो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अगेन देख लो आप, एक बार ये देखो, ये 4 मिली एम्पीयर लाया मैं 5.2 पे, देन ये 5.4 हो गया, और वो करंट देखो आप, करंट आपका रेगुलरली अप टू 10 मिली एम्पीयर पहुंच गया। ठीक है, यस सर, ओके सर। ब्रेक डाउन। यहाँ पे आपके वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए और करंट बढ़ता रहे, दैट इज, वो आपका जीनर ब्रेकडाउन कहलाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, जीनर में एक और ब्रेकडाउन होता है, कौन सा होता है? ये तो जीनर ब्रेकडाउन तो हमने देख लिया। एवलांच ब्रेकडाउन नाम सुना है ना? एवलांच। यस सर। यस सर। हाँ, तो एवलांच ब्रेकडाउन अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या होगा? हम नहीं कर सकते यहाँ, क्यों नहीं कर सकते बताओ? एवलांच ब्रेकडाउन के बाद जीनर की क्या कंडीशन हो जाती है? जल जाता है। वेरी गुड, वो बर्न हो जाता है। तो उसके बाद अपन एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे अगर इस तरह जीनर जलाते रहे तो। ठीक है ना? तो उसको हम थ्योरी पार्ट में पढ़ लेते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन के बाद एवलांची ब्रेकडाउन होता है, जहां पे जीनर बर्न हो जाता है, जल जाता है। राइट, समझ में आ गया? यस सर। आ गया सर। हाँ, और कोई आप पूछो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो। अपने 4 एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, चारों में से कुछ भी पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट है तो। नहीं तो एक 5वां और रिवर्स बायस करवा देते हैं अभी। बताओ। जैसे मेरे पास 4 काफी हैं। कार्ड नहीं, एक और करा दे, 5 करा दे, बाद में लोड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर चले। रिवर्स बायस ले लो आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन रिवर्स। अगला एक्सपेरिमेंट नंबर है आपका 5 नहीं 3। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन रिवर्स बायस, ये वाला।
पास ले लो, एक साथ दिख जाएगा। इसमें आप कौन सा डायोड यूज ले रहे हैं? है भाई? जीनर। जर्मेनियम डायोड। हाँ, जीनर तो हो चुका है अपना, जीनर थोड़ी ले रहे हैं यूज। जर्मेनियम डायोड ले रहे हैं। जर्मेनियम वो 79, वो 79 या 80 या 81, वो है, ये तीन में से कोई भी जर्मेनियम डायोड यूज ले रहा है। एक्चुअली इस डायोड का नाम है डिटेक्टर डायोड। क्या नाम है इस डायोड का? डिटेक्टर डायोड सर। डिटेक्टर डायोड का मतलब होता है समथिंग डिटेक्ट करना, कुछ चीज को अलग करना। तो ये हमारे रेडियो रिसीवर में काम आता है डिटेक्टर डायोड, है पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने इसको यहाँ क्यों यूज लिया जानते हो? फॉरवर्ड बायस में तो आपने लिखा है 1N 4007, 1N 4001 से लेके 1N 4007 तक यूज लिया था। वो जो लिया था अभी अपन ने नहीं किया वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? मगर आपने पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर डायोड पढ़ा होगा। उसकी जो वोल्टेज होती है फॉरवर्ड वोल्टेज 4007 की 700 वोल्ट तक वो काम कर सकता है फॉरवर्ड में। तो उसकी रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा होगी। ये देखो यहाँ पे लग रहा है ये डायोड ऐसा होता है। ये ब्लैक दिख रहा है ना आपको? ऐसे डायोड होता है रेक्टिफायर डायोड। तो ये हम बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसी पे दूसरा ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये OA17 है, नहीं दिख रहा? ये देखो येलो तार के पास, ये देखो ये रहा, क्लियर नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? 1N 4007 लिखा है नीचे, देखो लिखा है ना। ये डायोड बाद में लेंगे, अभी नहीं ले रहे यूज, हम फॉरवर्ड बायस में लेंगे। अभी हम ये वाला डायोड यूज ले रहे हैं OA79, क्योंकि इसकी नी वोल्टेज कम है और रिवर्स वोल्टेज भी कम ही है इसकी। ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 वोल्ट तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? इसलिए इसको हमने यहाँ यूज लिया है। अगर हम यहाँ पे वो 1N 4007 यूज लेते तो हमें करीब 1400 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती। तो हमारी लैब में 30 वोल्ट की सप्लाई है, तो उस लिमिटेशन को देखते हुए हमने इस डायोड को यूज लिया है, ठीक है ना? कि हमारा एक रिलेटिव कर्व आ जाए रिवर्स बायस में, ठीक है? तो ये OA79 आपको पता होना चाहिए वैसे तो कहाँ यूज आता है। हमने यहाँ यूज क्यों लिया है इसका कारण भी मैंने आपको बताया कि पावर सप्लाई अपने पास कम वोल्ट की अवेलेबल है, इसलिए हमने यहाँ पे इस डायोड को यूज लिया है। नहीं तो हम रेक्टिफायर डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में यूज लेते हैं उसी को यहाँ लेते, मगर पावर सप्लाई कम होने की वजह से ये डायोड यूज लिया हमने, राइट? तो ये देखो ये पावर सप्लाई है, दिख रही है आपको पावर सप्लाई? इसमें ये कोर्स का है, इसमें फाइन का है। इसमें हम कोर्स से वेरी करेंगे क्योंकि इंटरवल हमारा कितना है, देखो 0, 3, 6, 9, 12 है ना? देख रहे हो आप कॉपी में? हेलो, कॉपी में ऑब्जेक्शन टेबल देखो आप सब जने, ऑब्जेक्शन टेबल को देखो। एक मिनट होल्ड करना बच्चों। हाँ सर बोलिए। तो आज हम ये रिवर्स बायस का करते हैं। इसमें इंटरवल कितना है बताओ आप वोल्टेज का? टेबल, सब टेबल देखो, ये वाली टेबल देखो, अपने ऑब्जर्वेशन टेबल इसकी एक्सपेरिमेंट खोल के पीडीएफ खोल के देखो। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। 3 का इंटरवल सबने खोल लिया ना? यस सर। 3 वोल्ट का इंटरवल। हाँ, Yes, sir. 3 वोल्ट का इंटरवल दिखा, 0, 3, 6, 9, 12 है ना? तो यस सर। ये पावर सप्लाई आपको दिख ही रही है, ये अलग टाइप की पावर सप्लाई है क्योंकि लैब में डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाई है। तो हमें सब मालूम होना चाहिए। इसमें होती इसमें यही है कि वोल्टेज जहाँ लिखा है वहां पे कोर्स एंड फाइन या खाली एक ही पोटेंशियोमीटर हो सकता है, तो उससे हम वेरी करते हैं। जो सप्लाई देते हैं ना वोल्टमीटर चेंज करते हैं, वो उससे किससे चेंज करते हैं? वोल्टेज वाले कोर्स या फाइन पोटेंशियोमीटर से। किससे करते हैं बोलो सब?
वोल्टेज सर वोल्टेज वोल्टेज वाले वाले कोर और फाइन से कोर नहीं, कोर्स कोर्स या फाइन पोटेंशियोमीटर से, फाइन से पोटेंशियोमीटर से चेंज करते पोटेंशियोमीटर से। हाँ, ये आपका वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है, वेरिएबल रजिस्टर है एक तरह ये से। दिख रहा है सब, कोर्स दिख रहा है, लिखा हुआ कोर्स। यस सर। यस सर। ये कोर्स है, ये नीचे फाइन है, ठीक है। कोर्स और ये फाइन। ओके, ये और नीचे देखो वोल्टेज लिखा है नीचे इसके, ये वोल्टेज। तो वोल्टेज वाले को वेरी करते हैं। फिर अगेन इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ के ये वोल्ट मीटर वाला पढ़ते हैं, ये वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 वोल्ट करते हैं पहले। 0 पे तो 0 लिखेंगे। यस 3 वोल्ट किया हमने, तो करंट कितना आया? यस सर। इतना कम क्यों है? 3 वोल्ट पे वाट हिल तो नहीं गया। क्या जो भी आ रहा है अलग लगाता है, ठीक है, काम तो कर रहा है। हवा कर रहा है, ठीक है। 3 वोल्ट पे आपका करीब आना रहा है 4 माइक्रो एम्पियर। लिख लो 3 वोल्ट पे 4 माइक्रो एम्पियर। उस कॉपी में हो सकता है अलग हो कुछ, ठीक है ना, तो जो आ रहा है अपन वही लिखते हैं। 3 वोल्ट पे 4 माइक्रो एम्पियर आई ए है ये ना, आई ए। फिर 6 वोल्ट पे 5 माइक्रो एम्पियर लिख लिया। यस सर। यस सर। फिर 9 वोल्ट पे 9 पे एक मिनट देखिए कितना है, 5 6 माइक्रो एम्पियर करीब, 6 9 वोल्ट पे। फिर 12 वोल्ट पे करीब 6 ही लिखो आप, ये 7 कर दो आप, 7 माइक्रो एम्पियर 12 वोल्ट पे। फिर 15 वोल्ट पे 5 माइक्रो एम्पियर। क्या हुआ? फिर 16 पे 6 माइक्रो एम्पियर, 17 पे 7 माइक्रो एम्पियर, 18 पे 8 माइक्रो एम्पियर, 19 पे, अरे सॉरी 15 पे लिया था ना अपन ने, यस सर। 3 का इंटरवल Yes, 15 sir. तक ही लिया था ना। उसके बाद 16 17 लिया अपन ने, कितना लेना चाहिए था? 18। 18। 15 वाला बता। 12 के बाद 15 लिए ना, यस सर। 9 12 15 ले लिए। यस सर। और हटा देना, कोई और रीडिंग हो तो हटा देना, मैं भूल गया। मैं एक वोल्ट लेने लग गया। 3 वोल्ट इंटरवल है यहाँ, है ना। 15 वाला बताएं। 15 वाला 15 सर पे करीबन, हाँ 15 वाला 7 माइक्रो एम्पियर है करीब। 12 वाला कितना है? 7। 12 वोल्ट। 12 वाला भी 7 ही है 12 सर। वोल्ट। तो इसको आप 8 कर दो, ठीक है, 15 को। फिर 15 के बाद 18 वाला 9 माइक्रो एम्पियर कर दो, 18 पे 9। फिर 21 पे 12 माइक्रो एम्पियर। फिर 24 पे 15 माइक्रो एम्पियर। फिर 27 पे 20 माइक्रो एम्पियर, 27 पे 20 माइक्रो एम्पियर। 27 से ज्यादा जा ही नहीं रहा है, तो लास्ट रीडिंग 27 की हो गई हमारी, ठीक है। Now your experiment is, हाँ, this experiment is over. आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल। अब कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो इसका जो कर्व आएगा आपका, कर्व दिखाएं सर। ये स्केल अपन ने इस तरह लिया ना, बड़ी 3 की, इसलिए ये स्केल इस तरह आया है। अगर ये स्केल छोटी ले लेते, आप अगर ये छोटी लेंगे
तो ये लगभग लगभग यूं आएगा ये। अच्छा, ये जरूरी है नहीं है कि पॉइंट एकदम स्ट्रेट लाइन में आए, ये हो सकता है ये पॉइंट यूं होके यूं हो जाए, यूं। ठीक है, तो आप Yes. अपन पॉइंट वाइज इसको बनाएं ग्राफ को। अब ये देखो ब्रेक डाउन तो होगा नहीं, तो ब्रेक डाउन अगर इसमें हो जाता रिवर्स बायस में तो ये डायोड जल जाता है हमारा। क्योंकि इसकी वोल्टेज मैक्सिमम 15-17 वोल्ट है रिवर्स बायस में, तो ये डायोड एक कर्व आ जाए हमारा रिलेटिव, इसलिए हमने ये लिया है। तो इसका कर्व लगभग स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो यूं आके इस तरह से आ जाएगा या जैसा भी आपका कर्व आया आप बना लें, ठीक है ना। इस तरह स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये कुछ पॉइंट इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ यूं आएंगे, इस तरह से आएंगे सांप की तरह, ठीक है। तो उसका नेट जो रिजल्ट होगा हमारा, तो वो लगभग लगभग ये इस तरह से आ जाएगा, लगभग स्ट्रेट लाइन नहीं आके यूं आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं रीडिंग्स को, और कर्व को समझने के लिए वैसा बना सकते हैं जैसा सर ने आपको बताया। रिवर्स बायस का बताया ना सर ने आपको, यस देखना मेरे पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ में देखना, नहीं तो आप मतलब अपना मतलब है, अपना जो एम है वो है समझने का कि रिवर्स बायस में कैसा आता है, ठीक है। सो योर Okay, sir. एक्सपेरिमेंट इज ओवर। हाँ, आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, और नहीं प्रॉब्लम है तो आप लीव कर सकते हैं। तू बता दे। नहीं, एक मिनट अटेंडेंस लूंगा, लीव मत एक करना। मिनट लीव मत करना, आप अटेंडेंस लेंगे सर। सर एक सेकंड सर, इसमें अभी जो सर टेबल बनवाई ना सर, हाँ सर बोलो, इस बोलो। टेबल में सर अभी जो ये टेबल बनवाई ना आपने सर, इसमें ये 15 वोल्ट के बाद एकदम से सर मतलब